class. First thing I would like to tell you all is that now you have your MCQ exams. Okay, you have your MCQ exams now. So for MCQ exam, you all have to go through the lesson properly, each and every line thoroughly, and whatever I have taught you, I told you all to note down in your rough notebook. I hope everyone had noted down. तो उसमें जो छोटी छोटी चीजें, all small things that we have discussed, anything can come in your MCQ exam. MCQ एग्जाम में उसमें से कुछ भी आ सकता है, इसलिए thoroughly each and everything whatever is discussed in the class and given in your textbook, और थोड़ा बहुत extra knowledge regarding related to whatever topic is there. Okay, so portion for your MCQ exam is lesson number 1 and 2. हाँ, lesson number 1 is very small, ज्यादा उसमें कुछ नहीं है. Only the things that I got to know that day, कुछ बच्चे omnivorous, carnivorous, herbivorous में doubt था, है ना? Can you hear me everyone? Yes, ma'am. है ना? But only that was there and food का थोड़ा सा, but component of food is a big lesson. उसमें बहुत सारी चीजें you have to remind, याद करके रखना है. So you have to go through each and every line of the lesson properly. Okay, before I'll take your test, एक छोटा सा टेस्ट देंगे. टेस्ट means I'll give you few questions. I'll read the questions. I can ask any one of you, or roll number wise you can answer. Okay, and if you want to note down those, इसके लिए keep your rough notebook with you. Later on what you can do, put a heading test, question number 1, answer 2, answer 3, answer, like this you can write, and we'll discuss here. Before that, the last page that we have not done, that I want to, this page. Okay, can you see everyone? Yes, ma'am. This page we have थोड़ा सा किया था, लेकिन कुछ parts were left, so we'll just see once this one. What do you mean by, Ayan will tell me answer for this one. What do you mean by deficiency disease? What is the meaning of deficiency disease? Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Ayan, you tell me. Nobody will speak now. Ayan, you tell me, what do you mean by deficiency disease? What is the meaning of the word deficiency? Deficiency का क्या meaning है? बताओ. आता है? नहीं आता तो no madam, I do not know answer, इतना ही बोल दो, no problem. What do you mean by deficiency? I'll tell you. Deficiency means किसी चीज की कमी होना हमारे अंदर. Okay, you can see a word here, deficiency disease or disorder. Okay, नहीं आता तो बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डेफिशिएंसी का मतलब किसी चीज की कमी हो जाना. अक्षया, डू यू नो व्हाट इज डेफिशिएंसी डिसीज? Ma'am, the physical. हाँ, Yes, ma'am. Physical. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिशिएंसी डिसीज? किसी चीज का कमी होना. किसी भी चीज की कमी से, कोई भी न्यूट्रिएंट्स अगर हमारे अंदर उसकी डेफिशिएंसी है, अगर वो कम हो गया, उसके कारण हमारी बॉडी में उस चीज की डेफिशिएंसी हो जाती है. लाइक सी फर्स्ट वन. कैन यू सी फर्स्ट वन? व्हाट इज दिस? Yes, ma'am. Vitamin A. विटामिन ए. विटामिन ए अगर कम हो जाता है हमारी बॉडी में, अगर उसकी डेफिशिएंसी कम हो जाती है, तो हमें लॉस ऑफ विजन, विजन मतलब साइट, मतलब नजर, हमारी आई साइट वीक हो जाती है. सिम्टम्स का मतलब है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर विटामिन ए की कमी है? तो नाइट ब्लाइंडनेस. हाँ, नाइट ब्लाइंडनेस, मुझे दिखाई देना थोड़ा सा कम हो जाएगा, या कभी कभी किसी को रात में कम दिखेगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा. सेम वे विटामिन B1. So in your MCQ exam they can ask you question कि tell me like options, they'll give you what disease will you get is caused due to the deficiency of vitamin B, या फिर बेरी बेरी कौन से deficiency से होता है, या लॉस ऑफ कौन सी deficiency से होता है. तो विटामिन B1 की deficiency से we get disease named beriberi. In this we have weak muscles and very little energy to work. Then vitamin C, this we have discussed that day. I picture also. क्या होता है विटामिन सी?
डिफिशिएंसी से ब्लीडिंग गम्स हाँ, गम्स जब तुम्हारे ब्लीडिंग होंगे, इसको बोलते हैं सिम्टम्स। ये देखो सिम्टम्स वर्ड याद रखना है। सिम्टम्स क्या है? ब्लीडिंग गम्स मींस यू हैव डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, तो यू विल गेट, आपने क्लास में बताया भी था। हाँ। देन विटामिन डी इज रिकेट्स, जिसमें वो बच्चे के मैंने लेग्स दिखाए थे जो थोड़े से बेंट लेग्स थे, वीक बोन्स एंड टूथ दिखे। आयोडीन में द डिसीज इज गॉइटर, जिसमें सोलन नेक है, ग्लैंड्स इन द नेक एपियर, गले में जो हमारे नेक में थायराइड वाले ग्लैंड्स हैं वो थोड़े सोलन मतलब सूज जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। एंड दिस वन वी डिड नॉट डिस्कस दैट डे। आयरन की कमी से, अगर हमारे अंदर जो आयरन है उसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया मतलब हमारे अंदर में खून की कमी, हीमोग्लोबिन हो जाती है ना। तो अगर मेरे अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? इफ आई हैव, जैसे समटाइम्स व्हेन यू गो टू डॉक्टर, तो डॉक्टर ऐसे आए बीमारी देखते हैं ना, ऐसे करके आए। यस मैम। तो वो जब पेल दिखाई देता है या तुम्हारा फेस पेल दिखाई देता है, पिंक पिंक दिखने की जगह इफ यू लुक पेल, पेल मतलब येलोइश कलर के दिखाई देते हैं। मैम टंग भी चेक करते हैं। टंग भी चेक करते हैं। देन यू अंडरस्टैंड दैट यू आर एनेमिक। एनेमिक का मतलब हीमोग्लोबिन की कमी है, तो यू हैव टू टेक लॉट ऑफ आयरन इन योर फूड। आयरन किससे मिलेगा? सबसे ज्यादा आयरन किससे मिलेगा? आयरन रिच फूड इज जैगरी, गुड़। मैम स्पिनच। हाँ, स्पिनच से मिलेगा, गुड़ से मिलेगा। मैम कोरिएंडर। ओके, लेकिन सबसे रिच है, लाइक आई टोल्ड यू ऑल दैट आल्सो, मैंने तुम्हें उस दिन भी बोला था खाने के बाद, ओके, खाने के बाद थोड़ा सा इफ यू टेक जैगरी। ये कौन बच्चा लेट के पढ़ाई कर रहा है? निर्मल जी, सीधे बैठ जाओ जरा, सिट स्ट्रेट एवरीवन, सिट एंड रीड। लेट के पढ़ोगे तो कितना समय आएगा? ओके, so now I'll start the test. कोरस में आंसर मत देना. Keep your notebooks ready with you. If you want to note down, put a heading test, question number 1, and write your answer. I'll tell your name or roll number wise. Okay. So. Okay, ma'am. Okay. So we'll start from here. My first question is, so this is revision. If you want to put a heading in your rough notebook, put a heading test and today's date. Can you read first question? मैम जस्ट हमें तो लिखना है क्या? नहीं, सिर्फ आंसर लिखो, 1 नंबर डालो. द एडिबल सब्सटेंस दैट वी ईट टू ऑब्टेन एनर्जी इज कॉल्ड डैश. एनी एडिबल सब्सटेंस, कोई सा भी एडिबल सब्सटेंस. एडिबल मीन्स what do you mean by मैम खाने लायक। ईटेबल. Okay. Edible substance that we eat to obtain energy is called dash. निर्मल बताएगा मुझे इसका आंसर. कोई सा भी एडिबल सब्सटेंस जो हम खाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है उसको क्या बोलते हैं? एडिबल सब्सटेंस दैट वी ईट इज कॉल्ड डैश. दिव्यांशु, यू टेल मी. दिव्यांशु बताओ इसका आंसर. कोई भी खाने वाली चीज जिससे हमको एनर्जी मिलती है उसको क्या बोलते हैं? विटामिन सी. हाँ, कौन बता रहा है? मैं नाम बताओ. मैम हाँ, निर्मल बोलो. विटामिन सी. विटामिन सी नहीं, कोई सी भी चीज जो मैं खाती हूँ जिससे आई विल गेट सम एनर्जी इज कॉल्ड. मैम एनर्जी पहले कोई सी भी चीज, लिसन, पहले सुनो. दिस वी हैव ऑलरेडी डन इन द क्लास. एनी एडिबल थिंग दैट आई ईट टू गेट एनर्जी. कोई सी भी चीज मैंने फूड. हाँ, हर्षिका यू टेल. हर्षिका यू टेल. फूड. मैम मेरे को पता है. एक बात सुनो, मैंने कोई सी भी चीज खानी है, मुझे वीक हो रहा है, मैंने जल्दी से उठाकर कुछ भी खा लिया, तो जरूरी है मुझे विटामिन सी. मैम मैम मुझे पता है. शुगर केन, पोटैटो. 1 मिनट स्टॉप. मुझे पहले सुनो. मुझे बहुत तेज भूख लगी, मुझे वीकनेस हुई, तो मैं किचन में जाके विटामिन सी किधर रखा है और कार्बोहाइड्रेट किधर रखा है ऐसा ढूंढूंगी? नहीं ना. आई टेक एनीथिंग एंड ईट. मैंने कुछ भी खाया और खा लिया, जल्दी से देखा और खा लिया उसको, खाने वाली चीज. लेकिन खाने वाली चीज शुड बी एडिबल. एडिबल चीज तो इट विल गो इनसाइड. तो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है ना, खाना खाया और खाने के बाद में एनर्जी रिलीज हुई तो मेरी बॉडी में अपने आप ताकत हो जाएगी.
लेकिन इफ आई एम फीलिंग वीक और मैं किचन में जाके कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, विटामिन ये एनर्जी गिविंग फूड ही खाना है, ऐसा नहीं है ना. इफ आई ईट एनीथिंग आई विल गेट एनर्जी. एनी एडिबल दैट आई ईट टू गेट एनर्जी, जिससे मुझे एनर्जी मिल जाए, इज कॉल्ड फूड. तो टेस्ट जाके डालिए वहां पे 1 नंबर डाल के, क्या आंसर होना चाहिए इसका? What is the answer? Food. Okay, my second question is the components that each food item contain is called dash. The component. Yes, very good. लेकिन अभी इसकी स्पेलिंग देखते हैं कैसे लिखोगे तुम लोग, फटाफट लिखो. न्यूट्रिएंट्स. और जो तुम लिख रहे हो इसका बाद में पीडीएफ बना के मुझे गूगल क्लासरूम में सेंड कर देना. देन आई विल सेंड योर मार्क्स और मुझे पता चल जाएगा क्लास में कितने बच्चे डिस्कशन में ध्यान दे रहे हैं. शौर्य कुमार, टेल मी आंसर स्पेलिंग. नहीं आ रही. मैम स्पेलिंग होगी NUTRIENTS. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. ओके, चलो आज थर्ड क्वेश्चन. यस मैम. ओके, सो थर्ड आंसर का ही पीडीएफ बनाकर भेजना है ना. सिर्फ आंसर का, लेकिन क्वेश्चन का नंबर करेक्ट लिखना. ओके. कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द फूड. कौन सा अटैचमेंट के साथ भेजना है? मैं इसका फोटो तुम्हें भेजूंगी. इसका आंसर बोलो. कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स एंड मिनरल्स. Mute your mics. Mute your mics. विटामिन. First of all, mute yourself. I'm reading the question aloud. Write answer in your notebook. Then I'll ask you. Okay. Next question is components present in the food are dash. 1, 2, 3, 4 and 5 components that are present in the food are dash. Put question number 3 and write answer. I'll tell your name. वही बच्चा मुझे आंसर बताएगा. Components present in food are dash. Okay. Components present in food are dash. Just remember the picture I had drawn on the board that day, जिसमें मैंने components of food लिखा था. I had put arrows. Okay. Raj Singh is going to tell me answer for this one. मेरा पूरा नहीं हुआ है. Oh, जल्दी से पूरा करो, अपना वीडियो ऑन करो and then tell me answer for this one. आदित्य तिल्लानी. Okay. गुंजन, तुम्हारा हुआ तो मुझे बताओ जल्दी से आंसर. गुंजन. गुंजन इज नॉट देयर. तनुष शर्मा has left the meeting. Children who are leaving the meeting, वो पूरा मेरे पास टाइमिंग का रिकॉर्ड आ रहा है, कौन कितने बजे आ रहा है और कितने बजे नहीं आ रहा है. You can see in the screen left hand side में दिखाई दे रहा है ना. So I can see children who are leaving the meeting and who are coming in the meeting and timing, everything is coming. Okay. Raj Singh, tell me फटाफट जल्दी से बोलो. कृति, you tell. मैम मेरे को पता है. मैम मेरे को पता है. विटामिन्स एंड बोलो आंसर. वीडियो ऑन करो. ओके, गुंजन डज नॉट नो आंसर. तो गुंजन आंसर सुनना है. कृति अभी आंसर बोलो जल्दी से. ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड. मुझे आता है. हाँ नहीं, मैम मुझे भी पता है. विहान has answered. विहान, I want your answer in the video. हाँ बोलो. मेरे को पता है. कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन और कार्बो. मैम मेरे को इसके लिए I told you words, no? I told you words for this. किसको एकदम पता है. फैट्स, like something that कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और कैल्शियम. और दो चीजें बताई थी जिसके बारे में we have learned in detail in the last class. मैम प्रोटीन. मैम प्रोटीन और विटामिन. The removal of undigested food. What is that? मैम dietary fibers. मैम dietary fibers. Okay. Mute yourself, everyone. Only Vedant Mewada will tell me answer. Vedant, you tell me answer. Yes, Chetan and Vedant, tell. I want to see you. Turn on your video. Carbohydrate. मैम Yes. carbohydrate, protein, vitamin, and minerals and dietary fibers and water. Excellent. Very good. हर्षिका, you also tell once again, ताकि जिनको नहीं आया था वो अच्छे से सुन लें. इसके बाद विहान वापस से बताएगा. Tell हर्षिका. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन,
vitamins and minerals Yes. and calcium, fats, मिनरल्स में आ गया ना वो. अभी और कौन सी चीज बच गई? वो तो मिनरल्स. dietary fibers, एक ही बात है दोनों. और एक that we drink Water. water. विहान वर्मा. Water. विहान, tell me. विहान. minerals, Yes. carbohydrates, vitamins, fats or water. Excellent. So I hope everyone has understood and Gunjan also understood. Gunjan Yes, abhi answer ma'am. लिख सकते हो ना? Okay. So now next question is will come down. A diet that contain all the nutrients or components in proper amount. मैम मुझे पता है Milk. मैम बैलेंस डाइट First, Balanced mute yourself. diet. Balanced नहीं, diet. हम Balanced चाहिए. diet. Stop. Mute कर दूं सबको. मैम बैलेंस No, ma'am. Mute yourself and listen. किसी बच्चे ने मिल्क आंसर बोला था. मिल्क क्वेश्चन है. कंप्लीट फूड अगर पूछा जाए व्हाट इज अ कंप्लीट फूड देन यू विल राइट मिल्क. मैंने पूछा अ डाइट. पहले क्वेश्चन को पूरा ठीक से रीड करना है. मैम मेरे को पता है आंसर इट इज नॉट बैलेंस डाइट Ma'am, a diet. balanced diet. Yes, balanced diet. A diet that contain all the nutrients or components in proper amount is called balanced diet. Okay. Next question is fifth one. Carbohydrates and fats are dash type of एनर्जी गिविंग फूड Ma'am, एनर्जी गिविंग फूड मैम एनर्जी गिविंग फूड Did I say anyone's name? ने किसी को आंसर देने बोला था. इशिता मराठा, you tell me. Ishita Maratha. एनर्जी गिविंग फूड Others. Ma'am, energy mute giving yourself. food. Others मैम mute एनर्जी yourself. गिविंग फूड एनर्जी बाकी सब गिविंग फूड ये कौन बोलते जा रहे हैं? इशिता बोलो तुम. इशिता. हाँ. Now tell me what is energy giving food? कौन से वाले energy giving food है? दो component बताओ. कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट एक्सीलेंट. कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे भी आंसर आना चाहिए और ऐसे भी आंसर आना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूं. हमारा Yes, कंप्लीट ma'am. नहीं हुआ तो जल्दी करते हैं. ओके. Food component that we need for our growth and development is dash. Food component that we need for our growth. ऐसा कौन सा food Ma'am. component है? Ma'am, protein. बिना नाम बोलने के आंसर मत बोलो. प्रोटीन तो बॉडी बिल्डिंग फूड के लिए है ना हाँ, तो कौन बोला ये? मैम बॉडी बिल्डिंग फूड मीन्स व्हाट इज बॉडी बिल्डिंग फूड? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तुम्हारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बॉडी बिल्डिंग फूड चाहिए. बॉडी बिल्डिंग क्या है? प्रोटीन है ना? निर्मल एंड तनुष शर्मा तुम बोलो. मैम न्यूट्रिएंट्स कौन बोला ये न्यूट्रिएंट्स? फूड कंपोनेंट दैट वी नीड फॉर आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. हमारी Ma'am, मैं बॉडी. बोलूं? हाँ बोलो. Ma'am, मैं बोलूं? बोलो. Yes, ma'am. बोलो इसका आंसर. वन वर्ड का आंसर है. Ma'am, protein. एक्सीलेंट. प्रोटीन है इसका आंसर. इतना क्यों तुम लोग डाउट में आ रहे हो? जो हमारी ग्रोथ मतलब प्रोटीन कहा था मैम मैंने भी कहा था प्रोटीन आई नो एवरी वन ऑफ यू नो ऑल द आंसर्स. इसका आंसर प्रोटीन है. जो फूड कंपोनेंट हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है वो है प्रोटीन्स. नाउ विल कम डाउन. इट इज डैश काइंड ऑफ फूड. वो कौन सा टाइप का फूड है प्रोटीन? प्रोटीन इज अ डैश फूड. प्रोटीन इज आदित्य. बॉडी बिल्डिंग फूड आदित्य पिलानी आ गए और कर रहे हैं. पहले अपने आप को म्यूट करो सारे बच्चे. प्रोटीन इज अ व्हाट काइंड ऑफ फूड? प्रोटीन मेरे को पता है मैम मुझे पता है बॉडी बिल्डिंग फूड. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज components of food that do not provide us any energy but they are very essential for our body is dash. मैम विटामिन Only vitamins. मैम आई नो Roughage भी है. Vitamins, minerals and roughage. Water भी है. Vitamins, minerals, and minerals, roughage, water. Excellent. Divjot is not answering or what? Okay. Next question is
The color of iodine. Okay, wait. रुको एक minute. Yes, ma'am. The color of iodine changes from brown to blue black if food item Starch. contains dash. Starch. Ma'am, Ma'am, starch. Carbohydrate या Excellent. starch. सबको सबको बहुत अच्छे से आता है starch. Very good. लेकिन अगर starch टेस्ट किया था हमने, हाँ starch टेस्ट Ma'am, किया था, starch. food item को किया था. Which food item contains lot of starch? Potatoes. Vedant, Potato. raw potato and rice. Rice. Raw potato and rice. Ma'am, उसमें rice. जब Wheat. Ma'am, wheat भी है. लेकिन मैंने हमने क्लास में किसमें किया था, मैंने किसमें ड्रॉ करके बताया था, रॉ पोटैटो में. ओके, रॉ पोटैटो पे अगर मैं आयोडीन सोल्यूशन डालूंगी तो आयोडीन का सोल्यूशन ब्राउन कलर का होता है. इट विल चेंज इनटू ब्लू ब्लैक. नाउ व्हाट इज द कलर ऑफ आयोडीन सोल्यूशन? Brown. Brown. Okay, come to next question. Time खत्म हो जाएगा, जल्दी बताओ. To test protein, 2 drops of dash and 10 drops of dash are used. Copper sulfate and 10 drops of water. नहीं, 10 drops of water नहीं है. Ma'am, sulfate का 2 drops and copper sulfate 2 drops of copper sulfate and 10 drops of water. Mute yourself. Divjot, you tell me answer for this one. Divjot, tell me answer for this one. Ma'am, 2 drops of copper sulfate and 10 drops of caustic soda. 2 drops of copper sulfate and 10 drops of caustic soda solution. Okay? ऐसा वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. तो ये ध्यान में रखना है कि हमें कौन कौन सी चीज यूज की थी फॉर द टेस्ट ऑफ प्रोटीन. वी यूज कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा. ओके, इसमें इतना कंफ्यूज मत हो जाना, प्रॉपरली लिखते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन को. नेक्स्ट इज द फाइब्रस फूड दैट वी ईट एंड इट एड बल्क टू आवर बॉडी and helps in excretion. Roughage बोला, then also roughage is also correct answer. बार बार मत बोलो. I understood. Dietary fiber is also correct answer and roughage is also correct answer. नंबर डाल के आंसर लिख रहे हो सब लोग? Yes, ma'am. Okay. Next question is, which is the richest energy giving component? Fats are the richest high energy giving food. A disease caused by lack of vitamins in our body is called dash disease. Deficiency. Right in your notebook. Next is bleeding of gums is caused due to the deficiency of dash. It is called as Vitamin B. vitamin C. जो ब्लीडिंग गम्स वाली प्रॉब्लम है वो किससे होती है? विटामिन सी. म्यूट योरसेल्फ. वंश अग्रवाल, ब्लीडिंग गम्स वाली जो प्रॉब्लम होती है वो किससे होती है? वंश अग्रवाल इज गोइंग टू टेल. Vitamin C. विटामिन सी. और विटामिन सी से जो ब्लीडिंग गम्स होते हैं उसके नाम क्या है, डिसीज का नाम? मैम 13th one question क्या था? Disease. वापस लगाएंगे अभी. आई सेंड यू दिस, है ना, भेज देंगे तुमको ग्रुप में. ओके, आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ डैश. विटामिन सी. Ma'am, vitamin C. मैम क्वेश्चन नंबर 11 12 13 फिर से एक बार बता दो. एकदम सीधे बैठे हैं, जितना पूछती हूँ उतना ही आंसर देते हैं. बाकी सारे बच्चे इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हैं. दिवजोत आल्सो आंसर्स ओनली व्हेन आई आस्क. नो नीड टू शाउट. नो, आई विल टेल योर नेम, यू हैव टू आंसर. और यही दोनों बच्चे मुझे ठीक से दिखाई दे रहे हैं क्लास में बैठे हुए. आई एम फीलिंग लाइक आई एम सिटिंग इन द क्लास विद ओनली 2 चिल्ड्रन. यस, अक्षया सिट स्ट्रेट. नेक्स्ट आंसर अक्षया देने वाली है. स्ट्रेट. शौर्य आल्सो आंसरिंग. यस. अयान, अगर कोई आंसर नहीं आता है तो डायरेक्ट बोल देना, मैडम आई डू नॉट नो. ओके, ताकि दूसरे बच्चे से पूछेंगे तो तुम्हें आएगा. वेरी गुड. सोनाक्षी चौधरी इज आल्सो देयर. वेरी गुड. मैम क्वेश्चन नंबर 11 12 13 एक बार आप फिर से बता दोगे क्या? बच्चा टाइम खत्म हो जाएगा हमारा. 11 इज द फाइब्रस फूड दैट वी ईट एंड इट एड बल्क टू आवर बॉडी. अयान, इसका आंसर बोलो. कौन सा फाइब्रस फूड है जो हम खाते हैं जो एक्सक्रीशन के काम आता है? I know the answer, ma'am. Tell. Ma'am, I know the answer. Dietary fiber. Okay. 12th one is richest energy giving component is. अगर फूड पूछा तो कुछ और लिखोगे, कंपोनेंट पूछा तो फैट्स. मैम मेरे को पता है फैट्स है.
13th question is a disease caused by lack of vitamins in our body are called dash diseases. Deficiency. And यहाँ तक हमने कर दिया है, यहाँ तक हमारा हो गया. Bleeding of gums is caused due to the deficiency of vitamin C. It is called as Scurvy. scurvy. 15th is amla is the richest source of vitamin C. Next question. Ghee and butter are rich in. मैंने बहुत सारा घी and butter खाया. Fat. Fat. आंसर दिया था fat. Very good. Raw potatoes and rice are rich. Rich की spelling wrong हो गई है, ये जरा देख लीजिए. Carbohydrate. हाँ, starch. किसने आंसर दिया ये starch वाला भी? वेरी गुड. हाँ, राइस और जो पोटैटो है ये दोनों आर रिच इन स्टार्च. किसमें रिच है? देखो उसमें जब एग्जाम में एमसीक्यू में ऑप्शंस आएंगे ना तो तुम्हें लगेगा ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी आंसर करेक्ट है, ऐसा लगेगा. इसके लिए ठीक से रीड करना है ना. सम फूड आइटम इज रिच इन, उसकी मेजर कौन सा कंपोनेंट है वो वाला लिखना है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज देयर आर 30 क्वेश्चंस होंगे. नहीं भी टाइम हो गया हमारा. ऑल सीजनल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. अगर मैंने सीजनल वेजिटेबल्स, सीजन में आने वाले वेजिटेबल और फ्रूट खाए तो वो किस में रिच होते हैं? यू टेल जस्टिन. प्रोटीन. जस्टिन बताओ. मैंने तुम्हें बताया था प्लांट प्रोडक्ट से हमको ये मिलता है अगर मैंने सीजनल खाए प्लांट प्रोडक्ट. तो लास्ट डे वी हैव डिस्कस लास्ट टाइम. जस्टिन किधर गया? हाँ जस्टिन टेल. किसको पता है? जस्ट रेज योर हैंड. किसको पता है आंसर? मैंने प्लांट प्रोडक्ट सीजनल खाए तो हर्षिका आता है, हार्दिक, किसी को नहीं आता? डाइटरी फाइबर्स. ऑल द सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन डाइटरी फाइबर्स. तो Banana is also rich in dietary fibers. ऑल द सीजनल फ्रूट एंड वेजिटेबल अगर मैंने खाए तो मेरी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स मिलते हैं. मिल्क, एग, फिश, मीट, पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन. किसी भी ग्रुप में अगर तुम्हें पल्सेस दिखाई देंगे ना तो वो प्रोटीन रिच फूड है. डैश इज अ कंप्लीट फूड. मैम मिल्क. ओके, can you read this question? Yes, ma'am. Ma'am, lots of can I answer? Name. हाँ अयान टेल. Ma'am, rickets. रिकेट्स. और सिम्टम्स क्या है रिकेट्स के? What are the symptoms of rickets? Bone soft and हाँ, bent leg. I had shown you a picture एक दिखाया था ना, bent legs. Okay, now calm down. Next question. आयोडीन के डिसीज और सिम्टम्स बताओ. विहान वर्मा. दिखाई दिया मुझे कितनी देर बाद? टेल. अक्षया. गॉइटर बुक में देख के नहीं बताना, सीधे देख के बताओ. गॉइटर और उसके सिम्टम्स क्या है? व्हाट इज द सिम्टम फॉर दैट? क्या है सिम्टम? ये भी अयान को आता नहीं. अबव बताएगा. व्हाट इज द सिम्टम फॉर दैट? आयोडीन की कमी हो गई मेरे बॉडी में तो क्या सिम्टम है? आई शोन यू पिक्चर एक दिखाई थी जिसमें वो गर्ल को नेक, सोलन नेक, यहाँ पे जो हमारा थायराइड का ग्लैंड है वो सूज जाता है, सोलन हो जाता है. ओके, नेक्स्ट इज विटामिन बी की कमी से कौन सी डिसीज होती है और सिम्टम्स क्या है? विटामिन बी. एंड सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स, व्हाट आर द सिम्टम्स? अक्षय एक भी आंसर नहीं बताया. वेरी लिटिल एनर्जी टू वीक वर्क. मसल्स एंड लेस एनर्जी. वीकनेस होती है और एनर्जी लेस होती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. टाइम देखना पड़ेगा. विटामिन डैश शुड बी टेकन फॉर गुड आईज एंड स्किन. मेंटेन आई. विटामिन ए. Stop. 23. Now I am reading question number 23. 23 is vitamin dash is synthesized in the presence of sunlight. Vitamin D.
ओके नाउ वेदांत ने पढ़ा, वेदांत के लिए क्वेश्चन है, what do you mean by synthesized? वेदांत, what is the meaning of synthesized? आंसर बताया ना, विटामिन डी। अभी सिंथेसाइज का मीनिंग बता। सिंथेसाइज मतलब मेड, बनाया, बनता है। अच्छा, विटामिन डी खाने से क्या होता है? विटामिन डी क्या करता है बॉडी को? वैष्णवी बताओ, विटामिन डी खाने से हमारी बॉडी का क्या एब्जॉर्ब होता है फॉर गुड बोन्स एंड टीथ? कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है ना हमारी बॉडी में। बाकी फूड खाने से जो कैल्शियम बना है वो कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है, और सनलाइट की प्रेजेंस में विटामिन डी सिंथेसाइज होता है। सिंथेसाइज मतलब बनता है, मेक्स, इट इज मेड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a watermelon contain lot of dash and mineral called dash. Ma'am, a watermelon contain a lot of water. और मिनरल कौन सा? ये तो सबको पता है। उसमें मिनरल कौन सा प्रेजेंट है? अनुज मीना बताएगा। अनुज, फॉस्फोरस नहीं, पी से ही स्टार्ट होता है, दूसरा है वो। मैंने उसका नाम भी बताया था लास्ट टाइम, पोटेशियम। ठीक है, याद रखना है इसको, और ये तुम्हें लिखना है इसके बाद में। नेक्स्ट इज, डैश विटामिन इज फॉर्म्ड बाय द ग्रुप ऑफ विटामिन्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। एक्सीलेंट, ये शौर्य ने आंसर दिया है। किसने आंसर दिया? वेरी गुड शौर्य। शौर्य यार, तुमको देखा नहीं। ओके, नेक्स्ट वन इज, deficiency of dash causes anemia. We should eat jaggery, dates and apple. Iron. Iron. 27 question is, अभी मेरा टाइम जरा खत्म होने वाला है, तो फटाफट सुनो। When a person eat too much of fat containing food, yes, जो अगर मैं एक बार question repeat कर दूं, when a person eats too much of fat containing food, then fat get deposited in his body. अगर किसी ने बहुत सारा फैट वाला फूड खाया तो फैट उसकी बॉडी में इकट्ठा हो जाता है, और पर्सन को कौन सी बीमारी हो जाती है? ओबेसिटी हो जाती है, एकदम मोटू हो जाता है, गोल मटोल। ये 25 वाले का क्या आंसर था? मैम 25 वाले का क्या आंसर था? वेट, आई सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? Dash vitamin is formed by the group of vitamins, vitamin B, B complex. वाले का 26 वाले का 26 वाला ऐसे मत करो, क्वेश्चन सोचो। डेफिशिएंसी, किसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है? एनीमिया मतलब खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी। इट इज बिकॉज ऑफ Iron. आयरन, है ना। अभी 28th क्वेश्चन मैम ये वर्कशीट आप सेंड कर दोगे क्या ग्रुप में? हाँ करेंगे। अभी तुम जरा इसको आंसर दो। 28th, एन ऑयली पैच ऑन अ पेपर शोज द प्रेजेंस ऑफ डैश इन मेरे को फूड। 27 का आंसर बता दीजिए। पहले सब जरा शोर करना बंद करो, क्योंकि किसी एक बच्चे को क्वेश्चन नहीं पता चल रहा है, तो शौर्य शायद पूछ रहा है, मैं उसके आंसर बताती हूँ। म्यूट योरसेल्फ। आई टेल यू आंसर फॉर 27 है, बहुत सारा खाना खाने से, फैट्स खाने से मेरी बॉडी में डिपॉजिट हो जाएगा, तो कौन सी बीमारी होगी? ओबेसिटी। ओके, नेक्स्ट इज, अगर मैंने एक पेपर में फूड आइटम को रैप किया और निकाला तो इट शोज ऑयली पैच, ऑयल दिखाई दिया, तो उसमें क्या प्रेजेंट है? टेस्ट फॉर फैट है। 29th इज, विच विटामिन और मिनरल इज नीडेड फॉर हेल्दी टीथ एंड बोन्स? हेल्दी टीथ और बोन, कैल्शियम। वेरी गुड मैम। कैल्शियम, कैल्शियम चाहिए, हेल्दी बोन्स चाहिए, तो दूध पीना है, कैल्शियम वाले फूड आइटम खाने हैं। ओके, Calcium. लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन डी? ये जो प्रॉपरली बताएगा वही बच्चा बताना। व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन डी इन आवर फूड? विटामिन डी का क्या काम होता है? शांत बताएगा भाई, विटामिन डी का क्या काम होता है? अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, विटामिन डी कुछ एब्जॉर्ब करता है, क्या बताया था?
जो है वो कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है। मैम विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है। मुझे पता भी नहीं चल रहा है। यस मैम विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है। It is good for our teeth and bones. First thing, है ना? Second thing, it absorbs the calcium in our body and helps to maintain our bones and teeth. जो हमारी बॉडी में कैल्शियम है उसको एब्जॉर्ब करता है और यूज करने के काम में आता है ना? एंड इट इज सिंथेसाइज्ड। वो कब बनता है हमारी बॉडी में विटामिन डी? जब हम सनलाइट में थोड़ा सा बैठते हैं तब। अलसी शायद एक और क्वेश्चन बनाया है। ये लास्ट क्वेश्चन देखो। फूड आइटम प्लस आयोडीन सोल्यूशन गिव्स ब्लू ब्लैक कलर। इट इज शोज द प्रेजेंस ऑफ food item. Okay, second is sweet food item shows the presence of dash. कोई फूड आइटम मीठा है मतलब उसमें क्या है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट। फूड एक्सट्रैक्ट प्लस थर्ड क्वेश्चन है फूड एक्सट्रैक्ट प्लस कास्टिक सोडा सोल्यूशन प्लस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन गिव्स वायलेट कलर ऑफ द सोल्यूशन। प्रोटीन। लास्ट is food item. Food item rubbed on a piece of paper gives oily patch gives the presence of fat. These all four are the test of various component. ये first वाला है starch, second वाला है protein, this नहीं, second वाला है simple carbohydrate, third one is protein जिसमें caustic soda और copper sulfate है, and last one is fat. Okay? बहुत सारे बच्चे आंसर्स दे रहे हैं बट सम चिल्ड्रन दे हैव डाउट इन सम क्वेश्चंस। नो प्रॉब्लम। ये थोड़ा सा इस हमें सब फूड आइटम का वी कैन नॉट नो इसमें कौन सा मिनरल्स और विटामिन्स हैं। फिर भी यू ऑल लर्न सो मच। तुम लोगों ने बहुत सारा इतना सारा याद करके रखा है तो इट इज वेरी गुड। बहुत अच्छा है। सो व्हाट यू ऑल हैव टू डू, सिर्फ लेसन को बहुत अच्छा रीड करो। जो मैंने कल वर्कशीट भेजी थी उसको लिखने में उसको रीड करो पहले, है ना? इफ यू कैन राइट एंड लिखते लिखते लर्निंग नहीं करना है अभी समझना है। अंडरस्टैंड एंड राइट योरसेल्फ। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अभी जल्दी से जाओ मत, है ना? को रीड करो। इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क मी। ये टेस्ट पेपर, लिसन यार, दिस टेस्ट पेपर आई विल बी सेंडिंग यू। और उसमें आंसर 1 2 3 करके सेंड कर दो या क्वेश्चन लिखोगे तो तुम्हें क्वेश्चन याद रहेगा। ओके ओके मैम, कर दूंगी। थैंक यू मैम फॉर टीचिंग अस। थैंक यू मैम। बाय बाय मैम। आई सी एवरीवन वंस। एक बार देख लें कौन कौन से बच्चे हैं, देन आई अंडरस्टैंड। मैम आप अगर सेंड कर दोगे तो हम क्वेश्चन लिख सकते हैं ना? हाँ, आई सेंड। हाँ, लिख सकते हो। आई सेंड यू क्वेश्चन। सोनाक्षी, यू डिड नॉट गिव एनी आंसर टुडे, या तुम्हारी आवाज नहीं आई मुझे? मैम मेरे को डाउट है। हाँ, पूछो। कि आपने जो वर्कशीट भेजी थी जो उसका 61 फिल इन द ब्लैंक्स था, उसका आंसर क्या था? ऐसे मुझे याद है क्या 60 वाला फिल इन द ब्लैंक्स? कोई एंजाइम था और नथिंग बट डैश का। मैम विटामिन वापस बोलो, क्वेश्चन थोड़ा साफ बोलो, अच्छे से धीरे से बोलो। मैंने विटामिन लिखा, सही है? क्वेश्चन वापस बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया। मैम कोएंजाइम्स आर नथिंग बट डैश, मैंने उसका कोएंजाइम्स आर विटामिन्स। Okay. Okay. Now what I'll do is I'll send you this test paper. Evening में भेजेंगे या थोड़ी देर बाद में भेज देंगे। We will make PDF. 16 में से 20 बच्चों ने ही PDF सेंड किया था लास्ट टाइम। प्लीज सेंड योर PDF। अक्षया, तुमने प्रॉपरली नहीं बनाया था। कल मैंने सेंड करा था ना, वो मिसिंग हो गया था क्योंकि 15 तारीख तक ही सेंड करना था, तो उसके बाद हो नहीं पाया। नहीं, मिस नहीं होता है, मिस नहीं होता है, वो लेट डेट में मुझे दिखाई देता है। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। बाय मैम। बाय मैम। ओके, बाय, टेक केयर, बाय मैम। हैव अ नाइस डे। बाय। थैंक यू मैम।